5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे राजनीति का नक्शा ही बदल दिया है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी बड़ी जीत के साथ उभरी। यहाँ तक कि ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट तक नहीं बचा पाई। कुल मिलाकर 206 सीटें बीजेपी की झोली में आई। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी महज 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 5% ज्यादा है। इस जीत पर बीजेपी के नेता गदगद हैं। वहीं ममता बनर्जी सीट लूटने का आरोप लगा रही हैं। 100 सीट से ज्यादा लूट किया, मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. ममता बनर्जी के अलावा महुआ मोइत्रा ने भी अपने दिल की बात सोशल मीडिया हैंडल एक्स से शेयर की। उन्होंने लिखा, जनता की इच्छा सर्वोपरि है। अगर बंगाल बीजेपी चाहता था तो उसे बीजेपी मिली है। हम इसका सम्मान करते हैं। हमने अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करते हुए आसमान मैदान कर डट कर मुकाबला किया और इसके लिए मुझे अपने नेता और अपनी पार्टी पर गर्व है। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे जहां संविधान सर्वोपरि हो, ना कि निरंकुश बहुसंख्यवाद। जय हिंद। Look, it's obviously going to be a very high voting percentage because we are seeing revenge voting. And I call it revenge voting because when you have trampled on people's democratic rights for the past 5 months, where an election should be a celebration of democracy, this has been a trial of democracy and a mockery of democracy. Valid voters have been put through so much of trouble. They've had to first, we've done the enumeration forms, which was okay. 60 lakh people have been deleted at that phase. After that, valid voters, 1.3 crores, were put through the logical discrepancy process, having to stand in lines, having to prove their citizenship over and over again. Today, as we speak, 27 lakh people have been denied their franchise who are valid voters. You have seen how about 1,600 have been able to reach the tribunals and a hit rate of over 98% have been put back on the rolls. If 98% of 1,600 people who have been managed to reach the tribunal have come back, you can imagine that out of the remaining 27 lakh, almost all would have valid voters. So this mockery of democracy, and people are going to show their protest via the ballot box. Most of the people of Nadia and Karimpur demanding the rail facility. So that's exactly what we've been trying to tell. We've been trying to tell the BJP. So the BJP stood a chance here. It stands no chance here. When Honorable Mamata Banerjee was a railway minister, she had passed this and even mentioned it in the railway budget. Those days we had 2 separate budgets. There's a mention of she had mentioned this in the railway line. And for the past 12 years, I've been MP for 7 years. Even before that, my predecessor, for 12 years since the BJP has been in power, I have been protesting and shouting in Parliament, saying not just Karimpur, Tehatta, Chapra, all these 3 assemblies which are in a seat, about 10 to 12 lakh people live here. There is no railway connectivity and there is the border. We have no way. So if the BJP had any sense, they should have done the railway line. But instead, every election, they take a lollipop and they say, come vote for us, we will bring you the railway line. But they already have the railway minister, they already have the railway ministry. If they wanted to care for people, they should have done the railway line and then taken votes on that. We had no problem. You are aware of the fight between the TMC and ISF worker in the... Look, as you can see, I've been on the phone. I've just come to cast my vote. There is no phone allowed here. I'm going to go back and go to the control room, so then we'll solve. You are too much confident about staying in power. Of course we are confident about staying in power. Of course we are. As we are Bengalis, this is the people of Bengal. Nobody else is coming here. बताते चले, टीएमसी के नेता भी नतीजे से खुश नहीं है। चौरंगी सीट पर एक्ट्रेस नैना बंदोपाध्याय ने अपनी सीट तो जीत ली, लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं वो काफी गंभीर है। क्या कहा, सुन लीजिए। किया गया है वोट को, और एक बात बताऊंगी कि चेंज हुआ है, चेंज होने में दायित्व तो बढ़ता है। ऐसा नहीं तुम गाली गलौज करो और बोलो ऐसा ही होगा, ये बात ठीक नहीं है। हमारी पोलिंग एजेंट को मारा गया है, हॉस्पिटलाइज हो गया, ये बात भी ठीक नहीं है। मारपीट मत करो। तो हम लोग 2011 में इतना जोश शोर से आए थे। ममता दीदी क्या कही थी, बदला नहीं बदल चाहिए, और हम लोग रविंद्र संगीत लेके जनता के पास गए थे। लेकिन आज जो हमने देखा, ये बात भी ठीक नहीं हो रहा है।
माटी मानुष की बात टीएमसी करती है। माँ माटी मानुष में ही है और वो लोग है, सब है। SIR किया है, 27 lakhs are almost now in the adjudication. So you must think what is happening. ये कमीशन को लेके जिसी को लेके जो किया गया है, ये बात गलत है। आप आ गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दायित्व लेना, इट्स योर ड्यूटी टू कीप पीस इन द स्टेट। हमारे इलेक्शन एजेंट को पकड़ के मारना भी ठीक बात नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगी। जनता ने कहा था उसमें गुंडा को 4 में एक बार गुंडे टीएमसी वालों को गुंडा कहा था कि सब नहीं, गुंडा तो हम लोग कहाँ, हम लोग अगर गुंडा होता तो 2011, 2016, 2021 को हम लोग दिखाते गुंडागिरी। हम लोग तो कोई गुंडागिरी नहीं दिखाए, ये लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन जो लोग आज मारा है हमारे एजेंट को, ये भी गलत बात है। हमारे मुंह के ऊपर गला दबा रहे थे, ये बात ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के अभेद्य किले को ढा दिया। इसी बीच टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने हालिया चुनाव परिणामों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बयान साझा किया। इसमें न कड़वाहट थी और न ही पीछे हटने का संकेत, बल्कि उनके शब्दों में वो शालीनता और संकल्प दिखा जिसने साबित कर दिया कि उन्हें बंगाल की राजनीति में स्ट्रीट फाइटर क्यों कहा जाता है। चुनाव हारने के बाद रात के 1:25 पर सायोनी घोष ने जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए एक्स पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता के जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती हूं। मैं बंगाल की माँ माटी मानुष का धन्यवाद करती हूं, जो हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहे। जादवपुर लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में निडर मन से और ऊंचा सिर करके जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए मैं नेता के प्रति समर्पित हूं। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोकतंत्र और इस महान राष्ट्र की एकता और ताने बाने की रक्षा के लिए खड़े हैं। एक पार्टी के रूप में हमने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न से लेकर मौन अदृश्य धांधली, केंद्र द्वारा वित्तीय नाकेबंदी से लेकर मीडिया ट्रायल, गिरफ्तारियों और झूठे मामले आदि हर बाधा का डटकर मुकाबला किया।